Hello students, how are you all? I hope you all are doing well, and I am Prachi Chaudhary taking your lecture of business communication, and today's topic is barrier to communication. Communication is complete and perfect when the receiver understands the message in the same sense and spirit as the communicator intends to convey. Here idea and information reached to and responded by receiver remain unaltered and undisturbed. But practically it has been noticed that such perfect and complete communication does not take place because of certain obstacles or other factors known as communication barriers. These barriers make the communication incomplete, unforceful and ineffective. Yes. For discussion's sake, these barriers may be categorized in the groups, and the first one is physical barrier, second is psychological barrier, and third is semantic blocks, and fourth one is organizational barriers. Yes, तो barriers क्या हैं? हमारे communication को distract करने वाला एक है ना, या हमारे communication को incomplete करने वाला एक factor है जिसको बैरियर कहते हैं. यानी कि जो भी हमारे कम्युनिकेशन, जैसे कोई हम किसी से मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट रह जाता है, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह जाती है. किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, है ना, तो क्लियर हम बोले जा रहे हैं, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक बैरियर, एक रुकावट आ जाती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसको बैरियर का नाम दिया गया है ना. जैसे ये देख रहे हैं आप, पिक्चर है, एक पर्सन इधर है, ये मान लीजिए हमारा कौन है, सुपीरियर है, और ये इसके सबऑर्डिनेट्स है, तो इनके बीच में एक दीवार खड़ी हो गई. कैसे खड़ी हो गई? ये एक बैरियर खड़ा हो गया क्योंकि इनका जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट रह गई, या पूरी तरीके से ये नहीं सुन पाए, पूछ नहीं पाए, जान नहीं पाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स, यस, some of the physical barriers are as follows. The first one is distance. Communication is found obstructed in long distance, like communication between America and Nepal. Yes, the distance between sender and receiver acts as a barrier in the communication process. जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें जो डिस्टेंस होता है, जो सेंडर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस जो है वो एक्ट करता है एक बैरियर की तरह. किसमें? कम्युनिकेशन प्रोसेस में. एज द सेंडर हैज टू स्पीक लाउडली टू कन्वे the message. Similarly, in import-export transactions, because of distances of miles, communication may be ineffective if proper use of fax telephone is not made. Clear? Next one is noise. It is from external sources and affects the communication process. Noise negatively affects the accuracy. Yes, any disturbance or interference that reduces the clarity and effectiveness of communication is called noise. Clear? Next one is psychological barriers. Psychological barriers जो हैं, देखिए, psychological barriers arises from motives, emotions, social values, different perceptions, etc. These create a psychological distance, cause misunderstanding among people at work and hinder the communication process. ये psychological barriers हैं. Psychological barriers कहाँ से आते हैं? मोटिव से, इमोशन से, सोशल वैल्यूज से, जैसा कि इसमें दिया है परसेप्शन से, डिफरेंट परसेप्शन से. परसेप्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन बाय द receiver. People receive things differently for a various number of reasons. देखिए, किसी जो पर्सन होता है, अदर पर्सन है, उसकी परसेप्शन हमारे माइंड में क्या है, लेकिन हम उसके बारे में जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, ऐसी हम उसकी परसेप्शन बना लेते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट परसेप्शन हो जाती है ना सबकी. मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ और समझ रही हूँ, जान रही हूँ, दूसरा व्यक्ति किसी उस व्यक्ति के बारे में कुछ और समझ रहा है, जान रहा है. यानी कि दोनों के देखने का नजरिया और समझने का नजरिया डिफरेंट हो गया. तो ये परसेप्शन के बेस पे साइकोलॉजिकल बैरियर होता है. ठीक है, नेक्स्ट है फिल्टरिंग. इन दिस प्रोसेस, नोइंगली और अननोइंगली, सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मे बी डिस्पोज्ड. इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम जाने अनजाने में क्या करते हैं, कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है जो हम डिस्पोज कर देते हैं. नेक्स्ट वन इज इमोशंस. इमोशन ऑल्सो क्रिएट barriers to effective communication like anger, hate, mistrust, jealousy, etc. है ना. और ये जो इमोशंस हैं
इमोशन क्रिएट करते हैं बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, जैसे कि एंगर, हेट, है ना, मिसट्रस्ट, जेलेसी, इन सब के थ्रू पॉजिटिव इमोशन सच एज लव, अफेक्शन एंड कंपैशन. पॉजिटिव, इसमें देखिए इमोशंस में भी दो पार्ट्स हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव इमोशंस में सच एज लव, affection and compassion smoothen the flow of communication, whereas negative emotion such as hatred, anger, anxiety obstruct the communication process. Clear? Next is viewpoint, है ना, जैसा कि वर्ड से क्लियर हो रहा है. व्यू पॉइंट, इट ऑल्सो क्रिएट्स बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. If the receiver does not clear the message and ignore without hearing the message may create obstructions. और व्यू पॉइंट में यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन ये सोचता है कि इस किसी भी इंफॉर्मेशन को सुनता नहीं है, क्या सोचकर कि मुझे तो सब पता है, तो वो क्या होता है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं और वो मैसेज कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहता, और इफेक्टिव नहीं रहता तो बैरियर क्रिएट हो जाता है. The next one is defensiveness. If the receiver receives the message as threat and interprets that message in the same way, it creates barriers to effective communication. और ये भी क्या करता है, बैरियर क्रिएट करता है. तो ये थे साइकोलॉजिकल बैरियर्स. अब नेक्स्ट हम आते हैं सिमेंटिक बैरियर्स पर. सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स द यूज ऑफ डिफिकल्ट एंड मल्टीपल यूज ऑफ लैंग्वेजेस, वर्ड्स, फिगर्स, सिंबल्स क्रिएट सिमेंटिक बैरियर्स. यानी कि जो हम डिफिकल्ट और मल्टीपल यूज करते हैं लैंग्वेजेस का, वर्ड्स का, है ना, फिगर्स का, सिंबल्स का, तो ये क्या क्रिएट करते हैं, ये सिमेंटिक बैरियर क्रिएट करते हैं. ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लैंग्वेज से कनेक्टेड बैरियर्स होते हैं वो सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज लैंग्वेज. A meaning sent by the sender can be quite different from the meaning understood by the receiver. Long and complex sentence create problem in communication process. यानी कि जो meaning send कर रहा है sender can be quite different from the meaning understood by the receiver. वो किसको, जो हमने मान लीजिए जिस लैंग्वेज में हम अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि रिसीवर भी उसे ऐसे ही समझे. तो लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है या फिर बहुत लेंदी लॉन्ग सेंटेंस जो होता है वो क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में. और प्रॉब्लम क्रिएट होगी यानी कि बैरियर हुआ. और कौन सा बैरियर हुआ, सिमेंटिक बैरियर हुआ. नेक्स्ट आता है जॉर्गन्स. टेक्निकल और अनफैमिलियर लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर्स. अनफैमिलियर लैंग्वेज अगर हम यूज करते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो भी बैरियर क्रिएट करती है. द मैसेज शुड बी सिंपल एंड कंडेंस्ड एज फार एज पॉसिबल सो दैट नो कंफ्यूजन इज क्रिएटेड. अगर आप अपनी लैंग्वेज को, अपने मैसेज को सिंपली फॉरवर्ड करें तो उससे क्या होता है कि आपकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कंफ्यूजन के क्रिएट होने की. Yes, the next one is organizational barriers. और ये organizational barriers होता है, it is raised from the organizational goals, regulations, structure and culture. कहाँ से raise होते हैं, organization के goal से, regulation से, structure से and कल्चर से. इसमें एक पॉइंट आता है पुअर प्लानिंग. अगर आपकी प्लानिंग ही खराब हो जाती है, यानी कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है, अपना एम अचीव करना है, लेकिन उसके लिए जो आपने प्लानिंग की है, उसमें जो डिकोडिंग एनकोडिंग की है, आपने जिस चैनल का उसमें सिलेक्शन किया है, अगर वो सही नहीं किया है तो आपकी प्लानिंग क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है. यानी कि आपकी प्लानिंग खराब हो जाती है. और प्लानिंग अगर आपकी पुअर रहेगी तो आपका कम्युनिकेशन भी बैरियर क्रिएट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटीज. यानी कि डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ बैरियर फॉर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी कि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे आएंगी, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो डिफिकल्ट है ना, फ्री फ्लो नहीं है इंफॉर्मेशन का, तो वहां पर भी एक बैरियर क्रिएट होता है. स्टेटस डिफरेंसेस. नेक्स्ट है स्टेटस डिफरेंसेस. सुपीरियर provides information to the subordinate about plans and policies. Different information is provided by different subordinates who create barrier in communication. तो अलग अलग इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग सबॉर्डिनेट्स के थ्रू अलग अलग दी जाएगी. जब सबॉर्डिनेट्स के थ्रू अलग अलग इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो क्या होगा, वहां पर भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर क्रिएट हो जाएगा.
नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है ना, तो वहां पर भी एक ऑर्गेनाइजेशनल डिस्टेंस के नाम से बैरियर क्रिएट होता है। इस बैरियर को नाम दिया ऑर्गेनाइजेशनल डिस्टेंस, यानी कि ये भी सिमेंटिक बैरियर में इंक्लूड है, क्योंकि डिस्टेंस आ गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में इंक्लूड है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टेंस आ गया है ना सेंडर और रिसीवर के बिटवीन में। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अगर देखिए इफ superior provides too much information to the subordinate in short period, receiver suffers from information overload which create barriers to effective communication। तो अपने कम्युनिकेशन, हमें अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है, लेकिन इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कहाँ पर होता है कि जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे, बहुत ज्यादा लोड दे दे इंफॉर्मेशन का, तो वहां पर भी बैरियर क्रिएट होता है और हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है। लास्ट वन इज टाइमिंग, कम्युनिकेशन कैन बी ऑब्स्ट्रक्टेड इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन टाइम। अगर इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर प्रोवाइड नहीं की जाती है तो भी क्या होता है कि कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है। क्लियर है? आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। Stay home, stay safe, be healthy, be happy, and Happy New Year in advance.